Hello students, this is our 11th chapter, that is enhancement of food production. In this part of the video we will study about microbes in human welfare. Biotechnology is the application of scientific and engineering principles for the processing of material by biological agents to provide goods and services to human or for human welfare. What is biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स का प्रोसेस करने के लिए बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स क्या है? वेरियस एजेंट्स हैं, जैसे बायोगैस बनाते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं. वाई दिस इज़ डन? दिस इज़ डन टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू ह्यूमन्स और फॉर ह्यूमन वेलफेयर. Clear with this? Then there are variety of microorganisms like algae, fungi, bacteria, viruses, protozoas, nematodes, etc. and their product, and that exhibit beneficial activities which are used for welfare of humans in regards to food, health, industry, agriculture, medicine, biocontrol, etc. These organisms are used variously in food and feed technology. ये organisms जो है, ये organism used variously मतलब हर एक चीज़ में यूज़ होते हैं, जैसे फूड में हो गए या फिर फीड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, वेस्ट यूटिलाइजेशन, एनर्जी एक्सेट्रा. बिकॉज बायोलॉजी का तो यूज़ हर जगह है, टेक्नोलॉजी से लेके फूड तक, वेस्ट यूटिलाइजेशन तक, एनर्जी तक, इंडस्ट्री तक. तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती है. ये ऑर्गेनिज़म्स भी यूज़ होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज़म्स बहुत सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प कर रहे हैं. क्लियर विद द पॉइंट? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Microbes in food preparation. The development of biotechnology occurred in two phases. ये जो डेवलपमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, it occurred in two phases. Wise traditional till 1971 and modern after 1970. दो फेसेस में होता है बायोटेक्नोलॉजी का प्रो डेवलपमेंट. टू फेसेस में हो रहा है. एक है ट्रेडिशनल जो टिल 1971 है, एक है मॉडर्न जो 1970 के बाद है, आफ्टर 1970. Traditional biotechnology is based on the fermentation principle by using fermenting bacteria. These were used in the preparation of variety of indigenous fermented food product. Example क्या है fermented food products का? Very common. Today we eat idli, डोसा, ढोकला. ये सारी चीज़ें क्या है? fermented food products हैं. तो ये सारी चीज़ों में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता था. ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ फर्मेंटेशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड थी, बट टुडे तो वी हैव मेनी थिंग्स, राइट. तो पहला एग्जाम्पल है डोसा, ढोकला, इडली. एज आई गेव यू, द डोसा, इडली एंड ढोकला आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया. वी ऑल नो बैक्टीरियाज आ जाते हैं, बैक्टीरिया की एक्टिविटी से ये फूड्स जो है वो फर्मेंटेड होते हैं. दे आर फर्मेंटेड प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड ब्लैक ग्राम with airborne leuconostac and streptococcus species of bacteria. This is very important, students. Leuconostac and streptococcus species.
This question is asked for many times, that what is the name of the bacteria which causes fermentation? CO2 produced during fermentation causes puffing up of the dough. डव का जो पफिंग होती है, पफिंग मतलब जो फूलता है ना इडली का आटा, तो वो होता है बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन. क्लियर विद दिस? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड है हमारा माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. हाउ आर माइक्रोब्स यूज्ड एंड हाउ दे आर given name as a source of food. Some microbes or their fruiting bodies are directly used as a source of food. कुछ microbes, some microbes या तो उनकी body को use करते हैं directly, उनकी body को directly use करते हैं as a source of food, as that bodies are rich in vitamins and proteins. The term SCP, that is single cell protein, denotes dead and dried cells of microbes like bacteria, algae, molds and yeast. हम लोग ने तो ये पढ़ चुके हैं अभी. Then some mushrooms and truffles are directly used as food. Mushrooms और truffles भी हम लोग use करते हैं as food. They belong to higher fungi. मशरूम क्या है? हायर फंगाई है. दे प्रोड्यूस लार्ज फ्लैशी फ्रूटिंग बॉडीज विच आर एडिबल. क्लियर विद दिस? फ्रूटिंग बॉडीज आर शुगर फ्री, फैट फ्री, बट rich in protein, vitamins, minerals and amino acids. The food in the fruiting body is low caloried. इनकी कैलोरीज भी बहुत लो होती है. सो वी कैन ईट इट वेरी ईजीली विदाउट द टेंशन ऑफ गेटिंग फैट एंड शुगर. सम मशरूम्स आर एडिबल एंड सम आर नॉट एडिबल. तो यहाँ पे मशरूम का क्लासिफिकेशन भी होता है विच इज़ नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, तो हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. But for your information, you should know we can't eat all type of mushroom. Mushrooms के भी type होते हैं. एक होते हैं poisonous, एक होते हैं non poisonous. तो जो non poisonous है we can eat that type of mushrooms. ये है microbes as a source of food. Second है dairy products. Lactic acid bacteria like lactobacilli. क्या है? Lactobacilli, very important. Lactobacilli, okay. Lactic acid bacteria उसे लैब बोलते हैं. Like lactobacillus are added to milk. मिल्क में जब lactobacillus ऐड करते हैं तो क्या होता है? It ferments lactose sugar of milk. lactose sugar किस में होता है? मिल्क में प्रेजेंट होता है. It ferment the lactose sugar of milk into lactic acid. Now what happened? Lactic acid causes coagulation and partial digestion of milk protein casein. अब ये lactic acid क्या करता है? coagulate करता है milk को. And what it does? It does partial digest कर लेता है पूरे milk को. मतलब वो दूध फट जाए तो वो क्या हो रहा है? coagulation हो रहा है, partial digestion हो रहा है. Milk is changed into curd, yogurt, cheese. Three are different. Curd, yogurt, cheese. क्यों? क्योंकि coagulation होता है, partial digestion होता है जो lactic acid करता है. The starter or inoculum used in preparation of milk product actually contain millions of lactic acid bacteria that is called as lab. What is lab करके क्वेश्चन पूछता है, तो lab is lactic acid bacteria which is found in milk. तो इसमें ये lab का फर्स्ट एग्जाम्पल है कर्ड. कर्ड हम लोग सब ने खाया है. Indian curd is prepared by inoculating milk with Lactobacillus acidophilus.
नाम याद रखना है स्टूडेंट्स. Lactobacillus acidophilus. It also checks growth of disease causing microbes. Clear with the curd? Moving to the second slide. Second example है हमारा yogurt. It is produced by curdling milk with the help of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. ये इसके नाम याद रखना है. इट इज़ प्रोड्यूस बाय कडलिंग मिल्क. मिल्क को कडल करना है. ओके. इट इज़ प्रोड्यूस बाय कडलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बल्जारिकस. थर्ड एग्जाम्पल है बटर मिल्क. बटर मिल्क क्या है? छाछ. तो द एसिड्यूलेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड, जो एसिलिएटेड लिक्विड होता है जो बच गया आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड इज कॉल्ड बटर मिल्क. क्लियर विद दिस? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा चीज़. द मिल्क इज कोएगुलेटेड विथ लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड फिल्टर्ड टू सेपरेट वे. मिल्क को पहले कोएगुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया एंड द कर्ड इज फॉर्म्ड. अब कर्ड फॉर्म हुआ. अब ये कर्ड को फिल्टर करते हैं एंड उसमें से सेपरेट वे निकाल देते हैं. सेपरेट वे मीन्स द लेफ्ट ओवर पार्ट. जो कर्ड को फॉर्म हुआ है उसमें से जो लेफ़्ट ओवर पार्ट है उसे निकाल देते हैं, वाटर को और वो लेफ़्ट ओवर पार्ट को अलग कर दिए. क्लियर? सॉलिड मास इज देन राइब्ड विद ग्रोथ ऑफ मोल्ड दैट डेवलप्स फ्लेवर इन इट. जो अब सॉलिड मास बचा, क्योंकि हमने पूरा लिक्विड तो निकाल दिया, तो बचा क्या? सॉलिड बचा. द सॉलिड मास इज देन रिपेंड. रिपेंड मीन्स अगेन इट इज़ राइब्ड, पकाते हैं उसे with the growth of mold that develop. अब ये mold क्या करता है? इसको flavor देता है. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. बहुत सारे varieties of cheese present है हमारे environment में. तो ये सब क्यों है? क्यों different है? क्योंकि उनका texture different है, उनका flavor different है, उनका taste different है, which are developed by different specific microbes. Clear? The Roquefort and Camembert cheese are ripened by blue-green mold, Penicillium roqueforti and P. camemberti respectively. इन लोगों का नाम ही इनके बैक्टीरिया पे रखा है. रॉकेफोर्ट होता है पेनिसिलम रोकेफोर्टी से, और कैमेम्बर्ट चीज़ जो है वो पी कैमेम्बर्टी से राइपेंड होता है. तो इनका नाम इनके बैक्टीरियाज पे ही रखा गया है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ आर डेवलप्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2. स्विस चीज़ के अंदर लार्ज होल्स क्यों है? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है. बाय अ बैक्टीरियम नोन एज Propionibacterium shermani. Propionibacterium shermani. Clear with this? Then moving to the next slide. Now we will study what are the roles of microbes in industrial production. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका रोल क्या है? During fermentation, variety of products like alcoholic beverages, organic acids, vitamins, growth hormones, enzymes, antibiotics, etc. are produced. Production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters. What is this fermenters?
फर्मेंटेशन के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन के थ्रू जब इतने सारे प्रोडक्ट्स हुए, जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ऑर्गेनिक एसिड्स है, विटामिन्स बहुत सारे फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंजाइम मिल रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो हम लोग खाते हैं वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब इन अ वेरी लार्ज स्केल। तो इंडस्ट्रियल स्केल में इनका प्रोडक्शन रिक्वायर होता है ऑन अ वेरी लार्ज वेसल्स एंड देयर इट इज़ कॉल्ड फर्मेंटर। The main function of the fermenter is to provide a controlled environment for growth of a microorganism. मेन फंक्शन क्या है फर्मेंटर का कि वो कंट्रोल्ड, मेन फंक्शन ऑफ फर्मेंटर इज़ टू प्रोवाइड अ कंट्रोल इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे जो कि कंट्रोल्ड है और वहाँ पे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो, or a defined mixture of microorganism to obtain the desired product. Clear with this? Now we will study about production of alcoholic beverages. जो alcoholic beverages होते हैं उनका production कैसे होता है? Clear? We all know what are beverages. Beverages are drinks. तो beverages is a liquid used or prepared for drinking. Clear? जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, बियर है, वाइन है, विच एक्ट एज स्टिम्यूलेंट। हमारे बॉडी में स्टिम्यूल कर रही है कुछ चीज़ें, स्टिम्यूलस पैदा कर रही है। तो टी ले लिए, कॉफ़ी ले लिए, बियर ले लिए, वाइन ले लिए, एवरीथिंग इज एज स्टिम्यूलेंट फॉर आवर बॉडी। क्लियर? दिस इज बेवरेज. Alcoholic beverages are the product of alcoholic fermentation. Alcoholic beverages कैसे prepare हो रही है? By the product of alcoholic fermentation of specific substrate. Use of microbes in making alcoholic beverage is known since Vedic period, that is 5000 to 7000 BC. 5000 to 7000 BC से अल्कोहल बेवरेजेस बनती है। क्लियर? Microbes, especially yeast, have been used for immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. ये सारे क्या है? ये सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस है और बहुत पहले से वैदिक पीरियड से ही अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जा रहे हैं। क्लियर? एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं वो है ईस्ट। क्लियर विद दिस? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. फॉर दिस पर्पस द ईस्ट Saccharomyces var. Ellipsodes, commonly called brewer's yeast. Okay, I'll underline this. Saccharomyces var. Ellipsodes, commonly called brewer's yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol. Among the beverages, wine and beer are produced without distillation. Various whiskey, brandy and rum are distilled beverages. ये बेवरेजेस में से वाइन और बियर प्रोड्यूस होती है विदाउट डिस्टिलेशन. क्लियर? और विस्की, ब्रेंडी, रम जो है वो डिस्टिल्ड बेवरेजेस में आती है. Tubular tower fermenter is used for large scale production of alcohol. This is important. Which is the name? What is the name of fermenter?
फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल करके क्वेश्चन आता है. सो इसका नाम है ट्यूबुलर टावर. वेरी इंपॉर्टेंट. Clear? Tubular tower fermenter is used for large scale production of alcohols. Clear with the term? तो यह है production of alcoholic beverages. We will end this video here only. In the next video we will continue the next topic. Thank you, students.